Hello, hi everyone. My name is Sumit, and I welcome you all to this free crash course on CSAT. Right? So देखिए lot many of you are getting worried कि सर हमारा CSAT नहीं हुआ है, right? And prelims is coming closer. When is the right time to prepare for CSAT, right? And CSAT को लेके देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, right? So I thought why not come up with a very cost effective course, right? A very time effective course for CSAT. And this is completely free of cost and this will be on YouTube, right? So let's begin with the course, right? And first and foremost, जिनको भी CSAT नहीं करा है, अगर आप ये कोर्स करेंगे and इसके बाद if you practice this, definitely this will reap great dividends for you, right? So let's begin this. So CSAT को देखिए, अगर पेपर के बारे में हम लोग बात करें तो जनरली देर आर 3 sections into that, right? The first is the quant section which is also called as quantitative aptitude. अब इसमें आपका ये नंबर सिस्टम वगैरह ये सब आता है, रीजनिंग जो आपके परसेंटेजेस और ये अरिथमेटिक के जो चीज़ होती है ये आता है, राइट? देन व्हाट कम्स इज द लॉजिकल रीजनिंग पार्ट, जिसमें आपके जो पैटर्न्स हो गए, राइट, एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ दिस. एंड देन सम पीपल ऑल्सो कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग के साथ DI भी इंक्लूड कर देते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, बट इट इज़ नॉट कमिंग दैट मच इन टू CSAT फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स. So let's not get into that. And then you have the English comprehension and English questions which come, right? And together आपको मिला के you just need 66 marks to get through this paper, right? So the best way to ensure the 66 is to do this quant and logical reasoning very nicely. Why? Because in this the answer is you are very sure of the answer. आप इसके लिए बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं, जबकि इंग्लिश में भी करा तो जाता है, बट in English the options depends upon what is the interpretation done by UPSC. तो काफ़ी बार इंग्लिश के क्वेश्चन गलत होने के भी चांसेस होते हैं, बट दिस इज़ अ श्योर शॉट थिंग. एंड उसमें भी इफ़ यू प्रिपेयर क्वांट वेरी वेल, राइट, सो क्वांट के ही वजह से आप इजीली 66 नंबर तक ले आएंगे, राइट, एंड थोड़ा बहुत इंग्लिश भी कर देंगे तो वे अब आपके 100 से आसपास आ जाएंगे. सो दिस वॉज अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑफ CSAT, राइट. एंड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, राइट, वी विल बी फर्स्ट कवरिंग क्वांट तो मैं आपकी अच्छे से करवा दूंगा, राइट. देन उसके बाद देखेंगे टाइम मिला तो लॉजिकल रीजनिंग को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट, सो दैट इसके थ्रू आपका काफ़ी हद तक यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ, राइट. सो लेट्स बिगिन विद द कोर्स नाउ. एज आई टोल्ड यू दैट दीज वीडियोज़ विल बी वेरी इफेक्टिव इन द सेंस, नो इट विल नॉट बी दैट 1-2 आवर का लेक्चर, राइट, एंड उसमें भी बहुत ज़्यादा जो टाइम वेस्ट हो रहा है वगैरह वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, राइट. These videos will be very effective to the point. Yani with each video I will be discussing with you a concept, right? Because in quant the concepts are very short concepts, right? And then we will take up some practice problems so that concepts gets practiced in a very nice manner. तो उसकी क्या हो जाएगी, आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे, right? So that is how we will be going to go about it. ठीक है, don't worry, I'll teach from very, you can say, basic, right, and I'll include best possible questions as well, but the level will be almost, you can say, good, right, and you will be able to solve the questions, right. तो उसके बाद आप previous year questions को जितना practice करना चाहें कर सकते हैं, right. So let's start off with the first concept जो आज हम लोग discuss करेंगे. We will be beginning with the number system, right. number system से हम लोग यहाँ पे start करेंगे, and what all we will be studying in number system in times to come. We'll be studying about classification of numbers. हम numbers को देखेंगे कैसे classify किया जाता है, इस पे भी कभी कभी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, right. We will be talking about the divisibility of number, right. divisibility के rules बहुत ज़्यादा important होते हैं, right. We will be talking about the unit digit problems. काफ़ी बार आ जाता है कि भाई खूब सारी बड़ी पावर्स दे दी जाएगी, 234 into 496 into 674 ऐसे करके, what will be the unit digit, right. This is what is also asked. तो यूनिट डिजिट पे भी आएगा. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स. काफ़ी बार फैक्टर्स वगैरह पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट. एंड फैक्टोरियल पे भी अगर आप थोड़े इधर उधर के एग्जाम देंगे तो फैक्टोरियल पे भी क्वेश्चन आता है, राइट. एंड देन फाइनली वी विल ऑल्सो सी द रिमाइंडर थ्योरम भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट. सो दैट इज़ हाउ वी विल बी गोइंग अबाउट इन दिस नंबर सिस्टम. बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चंस कम डायरेक्टली, एंड सेकेंडली इसका एप्लीकेशन आप प्रॉफिट लॉस, इसका एप्लीकेशन आप परसेंटेजेस, इसका एप्लीकेशन आप सिंपल इंटरेस्ट, एलिगेशन, मिक्सचर्स, उन सब में भी
करोगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट, राइट। कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझते हैं। पहले एक भी चीज़ याद रखिएगा, इफ दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी आर डिस्कसिंग एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, राइट। प्लेस वैल्यू वर्सेस फेस वैल्यू, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, राइट। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लीजिएगा व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, व्हाट इज द फेस वैल्यू, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट, ठीक है। एंड ये चीज़ यहाँ पे समझिए, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 45 नंबर रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। सो व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 5? सो फेस वैल्यू रिमेंबर जो दिख रहा है, सो फेस वैल्यू क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे हमें 5 ही दिख रहा है, सो आई विल राइट 5। बट व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5? द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज ऑन व्हाट प्लेस इज इट, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं ना यूनिट प्लेस, ठीक है, टेंस, ठीक है, राइट, इस तरीके से पढ़ते हैं ना, 1s 10s 100, ठीक है। तो ये यूनिट पे है, राइट, दिस इज एट द यूनिट प्लेस। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू इटसेल्फ विल बी 1 into 5, दैट इज 5, राइट। व्हाट अबाउट 4 सर, ठीक है, फेस वैल्यू क्या दिख रहा है 4, राइट, बट दिस इज एट द टेंस प्लेस, राइट। सो द प्लेस वैल्यू विल बी 4 into 10, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो इट वुड बी 40। एक सेकेंड सर, if I add the place value of this and the place value of this, what do I get? 40 plus 5, 45। क्या बात है सर, नंबर आ जाएगा? Yes, that means you have to add both the place value to get the number। अब ये कहाँ एप्लीकेशन होता है? तो जनरली अभी आपसे पूछ लिया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि सपोज करो ABC इज अ नंबर, ठीक है, एंड देन अ न्यू नंबर इज फॉर्म्ड बाय लेट अस से इंटरचेंजिंग A to C, तो क्या बन जाएगा CBA। देन इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, देन इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, व्हाट इज द न्यू नंबर, इस टाइप से आता है। तो इसकी ओपनिंग ही ऐसे होती है कि एनी नंबर कैन बी रिटन। अब इसको कैसे लिखेंगे, C into 1 प्लस B into इसकी 10 प्लेस वैल्यू प्लस A into ये कौन सी पे है 100 पे, सो 100A। सो द नंबर इज लाइक 100A प्लस, ठीक है, 10B प्लस C। कोई भी नंबर को इस तरीके से आप लिख सकते हैं, राइट। एंड देन इस पे ऑपरेशंस लगते हैं। नाउ वी कैन ऐड दीज, वी कैन सब्ट्रैक्ट दीज। हाँ भाई, इसमें क्या करा, इंटरचेंज करिए डिजिट, तो अब इंटरचेंज करके तो ये आ गया, तो इट विल बी A प्लस 10B प्लस 100C। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच यू शुड बी नोइंग अबाउट एनी नंबर, चाहे आप अप्लाई कर लो। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू से 4236, राइट, ये इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 into 1000 प्लस 2 into 100 प्लस 3 into 10 plus 6 into 1. This is what you will be writing about. That is how numbers can be expanded, right? तो अभी ये जब हम लोग आगे क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे तो काफ़ी बार ये कॉन्सेप्ट आता है। सो रिमेंबर द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू, राइट। फेस जो दिखता है, ठीक है, एंड प्लेस ऑन व्हाट प्लेस इट इज, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख ऐसे चलते जाता है, ठीक है, करोड़ 10 करोड़, right? So please remember the concept of place value versus face value. This is what was one concept which we learned, right? Fine. Now let's move on to the classification of numbers. Classification of numbers को हम यहाँ पे समझते हैं, right? And then we will be talking about some questions. अब classification of numbers को याद रखिए, right? Any number in this world, ठीक है, right? In this world consist of a real part plus it has some kind of imaginary part, and that is what is called as a complex number, right? complex number ये होता है, कोई भी नंबर का एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, right? if that imaginary part becomes zero, right, if that imaginary part becomes zero, then that number becomes real numbers. यानी नंबर्स को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वील बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द रियल नंबर्स, जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जिसका इमेजिनरी पार्ट होगा जीरो. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स टू माई माइंड, ठीक है, दैट एक होता है रियल पार्ट है इसका, एंड सेकेंड अगर इमेजिनरी पार्ट है तो दैट विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. हालांकि हर नंबर भी कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि रियल नंबर का भी इमेजिनरी पार्ट जीरो है, बट अभी हम लोग उतना डीप में डिस्कशन नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, हमें बस बेसिक देखना है. खैर, हमें इमेजिनरी नंबर से मतलब नहीं है, इमेजिनरी पे कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आता है. ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल बी टॉकिंग मोर ऑफ रियल नंबर्स. अब रियल नंबर को क्लासीफाई किया जाता है फर्दर दो टाइप में.
दो टाइप में कौन कौन से में क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। अब चाहो तो कुछ लोग रैशनल इरेशनल भी बोल देते हैं, ठीक है, राइट। एंड कुछ लोग डेसिमल एंड उसके बाद इंटीजर करके भी लिख देते हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक ऑफ इन टर्म्स ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। या फिर अगर आप चाहो तो रियल नंबर को कैसे लिख सकते हो, ठीक है, डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल से भी लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। आई डू इट दिस वे, डेसिमल नंबर, राइट, एंड इंटीजर, इस पे हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब डेसिमल कौन से होते हैं, जहाँ पॉइंट लगता है, जैसे 0.33, ठीक है, राइट, 0.123, राइट। अब डेसिमल में भी क्या होते हैं, हो सकता है रिपीट कर रहा हो, मे बी दैट इज अ रिपीटिंग डेसिमल, राइट। सो डेसिमल फर्दर गेट्स क्लासिफाइड इनटू अ रिपीटिंग डेसिमल, राइट, ठीक है। एंड सेकेंड, अ नॉन रिपीटिंग डेसिमल, and when it is non-repeating and non-terminating, we will be finding these are called as irrational number. These are called as irrational number, right? And repeating जो कि proper repeat होते हैं, these are called as rational number, right? And we will be seeing they can be written in p by q form, right? And जबकि ये non-repeating है, जैसे 0.1, 2, 3, 9, 7, 21 कुछ भी चलता जा रहा है, इसको आप कभी भी p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते। दे कांट बी रिटन इन p by q फॉर्म, ठीक है, राइट। सो प्लीज रिमेंबर दिस। एंड देन, ठीक है, एक और आपका आता है इंटीजर वाला पार्ट, ठीक है। इंटीजर यू ऑल नो दैट, इंटीजर में आपके क्या आएंगे, -3, -2, ठीक है, -1, 0, 1, 2, ये सब चीज़ें चलती है, ठीक है। दैट इज यहाँ पे आपका कोई डेसिमल नहीं चलता, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई डेसिमल नहीं चलता, राइट। एंड ऑब्वियस सी बात है जो जितने भी इंटीजर हैं दे विल ऑल बी रैशनल बिकॉज दे ऑल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। खैर हमें ये चीज़ नहीं समझना है, ठीक है, जितना भी ये सब हमने पढ़ा दैट इज़ ऑफ नो यूज़। क्वेश्चन आता है आपका किस में, सो द क्वेश्चन विच कम्स इज कन्वर्जन ऑफ द डेसिमल, एंड दैट टू कौन सा वाला डेसिमल, ठीक है, मे बी रिपीटिंग, ठीक है, मे बी नॉन रिपीटिंग, इनटू फ्रैक्शंस। ये आपसे पूछा जाएगा, ये आपको यहाँ पे बताने की ज़रूरत है। यू नीड टू फाइंड द फ्रैक्शन। सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल एंड लेट अस से x इज इक्वल्स टू 0.3333, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो पहली बात ये फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। सो x इज इक्वल्स टू 0.3 बार, दैट इज हाउ इट इज, जस्ट वन सेकेंड, सॉरी, ठीक है, दैट इज हाउ इट इज मैथमेटिकली रिटन। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है, पहले बेसिक समझेंगे, देन उसके बाद ट्रिक भी समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव x इज इक्वल्स टू 0.3 बार, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, जस्ट इसको पहले आप इस तरीके से लिखो 0.33333 डॉट 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 मल्टीप्लाई बाय 10, यू हैव 10x इज इक्वल्स टू 3.3333 बार, राइट। एंड दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, जस्ट सब्ट्रैक्ट इट। इफ यू सब्ट्रैक्ट इट यू फाइंड -9x इज इक्वल्स टू -3, सो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3/9, दैट इज 1/3। सो सिंपल आपने 1/3 के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस कर दिया, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। सिमिलरली इफ यू हैव, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0.47 बार, तो ये क्या हुआ, ये आपका 47 पे बार है। सो इट्स 0.4, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है, सिंपल। Now multiply by 10x. So 10x is equals to 47.47777 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, राइट। इस टाइप से आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 अनदर टाइम्स, सो यू फाइंड दैट 100x। सो 100x कितना आ जाएगा, 474.77777 इस टाइप से चलता जाएगा, ठीक है। इस तरीके देन आप सब्सटीट्यूट करेंगे, काटेंगे, दैट इज हाउ यू गेट। बट दिस इज नॉट व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, दिस इज नॉट व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। एक्चुअली मैं 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इट मीन 4.74, सॉरी, ठीक है, ये चीज़ वो कर दिएगा, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, हाँ, एंड दिस इज 47.4, ठीक है। तो खैर ये सब चीज़ें आप करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, राइट, देन 90x, ठीक है, ये हो जाएगा 43, ठीक है, राइट, जाएगा 47 - 4, तो x आ जाएगा 43/90, राइट। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस इज द बेसिक मेथड, बट दिस इज नॉट व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, ये आप कभी मत करिएगा, ठीक है। सो नाउ आई टेल यू अ मेथड
कैसे आप शॉर्ट में ये कर सकते हैं, ठीक है, एंड दैट इज हाउ यू विल बी डूइंग इट. सो इफ इट इज 0.a बार, इफ इट इज 0.a बार, तो बार वगैरह सब भूल जाओ, सिंपल a लिख दो. a अपॉन कितने पे बार है, कितने पे बार है 9, सिंपल एज दैट. कितने पे बार है 9, ये आपको लिख देनी है, ठीक है, सिंपल एज दैट, ठीक है, राइट. दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, राइट, फाइन. अच्छा, अगर ऐसा है 0.abc बार, ठीक है, तो पहले क्या लिख देंगे, बार हटा दो, लिख दो abc, फाइन, abc आपने लिख दिया. अच्छा, अपॉन कितने पे बार था, हाउ मैनी यू कैन से वॉज अबाउट 1 2 3, सो 9 9 9, सिंपल एज दैट. 0.ab बार, ठीक है, तो कितने पे बार है, ab अपॉन हाउ मैनी बार, 9 9. सो दिस वॉज एन ईजी वे टू डू इट. सर ये वाला बताओ 0.47 बार, इसमें भी क्या ये लिखेंगे, ठीक है, 47 अपॉन कितने पे बार है, तो आपने कहा सर एक 9 पे बार है, तो सर 47/9, फिर तो ये आना चाहिए, राइट. मेरे भाई एक नॉन बार भी है, तो नॉन बार को 0 बना दो. ओके, यानी सर नंबर अपॉन कितने पे बार इनटू जितने नॉन बार होते 0. एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, ये चीज़ ध्यान रखना, सिंपल एज दैट. यानी सर 0.ab बार आप ये कहना चाह रहे हो, ab अपॉन 1 पे बार है तो 9 लिखूंगा, a पे बार नहीं है तो 0 लिखूंगा. दिस इज वॉट यू वॉन्ट टू से, दिस इज वॉट यू वॉन्ट टू से, ठीक है. यस, बट सर आंसर तो यहाँ 43 था, आंसर तो यहाँ 43 था, ठीक है, आपका तो 47 आ रहा है. व्हाट्स रॉन्ग विद दिस. तो हमें क्या माइनस करना है, 4 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा. ओके, यानी टोटल नंबर माइनस जितने पे बार नहीं है, अपॉन उतने 9 जितने बार है, इनटू उतने 0 जितने नॉन बार है, राइट. अभी लग रहा है ये टफ है, बट अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा. सिमिलरली ए बी में क्या माइनस होगा, ए बी में माइनस होगा ए, क्योंकि उस पर नॉन बार था. सिंपल एज दैट, ठीक है, सिंपल एज दैट. अगर आप ऐसे देखोगे देन यू विल बी ईजिली एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन विच कम्स. अब देखो एक और देखते हैं, ठीक है, 0.abc बार, अब इस टाइप का आया, ठीक है, तो व्हाट यू विल राइट, पूरा ये नंबर लिखेंगे abc, ठीक है, माइनस होगा, राइट, बिकॉज सम बार्स आर नॉट अवेलेबल, सो ए बी माइनस कर देंगे. अपॉन कितने पे बार था सर 1, तो 1 लाइन लगा दो. कितने पे नहीं बार था सर 2 डिजिट देवर नो बार, 0 0, सिंपल. abc माइनस ab अपॉन 900, सिंपल एज दैट. हो गया ना, ठीक है, बिल्कुल. अब देखो, बट क्या यहाँ पे सर अब बच्चे क्या कर, स्मार्ट पीपल क्या करेंगे, ए बी सर c-1 अपॉन 900 और आ जाएंगे, सर कर दिया, गलत है. दैट इज नॉट, यू कैन टेक कॉमन बिकॉज दीज आर नंबर्स, these are numbers. So what we will do, c plus 10b plus 100a minus b minus 10a, ऐसे खोलेंगे upon 900. That is why first I told you that concept, that how numbers are opened through face value and place value. ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है. So don't get confused into this. These are not ABC, you can say algebra वाले. These are numbers. एंड नंबर्स में ऐसा तो ही ना होता है 99 माइनस कुछ, अगर 93 है तो मैं इस 9 को कॉमन लेके 9 माइनस 3 कुछ इस टाइप से कुछ कर दूंगा, यहाँ पे वो कर दूंगा, ठीक है, कि ये 9 इस 3 से कॉमन हो गया, ये नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है. तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना. यहाँ पे ABC है तो इसको ओपन आप ऐसे करोगे, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है. यू कैनॉट टेक दिस, ऐसे कॉमन ले लोगे, अगर आपने अपने ऐसे कॉमन ले लिया c-1 अपॉन 900, दिस विल नॉट बी द आंसर, ठीक है, दिस विल नॉट बी द आंसर, ठीक है. सो डोंट टेक ए बी कॉमन एंड काट दो, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ नॉट इट इज़, ठीक है, ऐसे इसको कॉमन नहीं लिया जाता, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राइट. सिमिलरली अगर कोई भी ऐसा आता है, ठीक है, अभी एक इस टाइप से आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 0 पॉइंट, इसका आप बताइए क्या होगा, ABC बार, ठीक है. व्हाट विल बी द आंसर टू दिस सर, ठीक है, जितने नंबर हैं ABC माइनस जितने पे बार नहीं है, नॉन बार कितने पे हैं 1, तो उसे माइनस करेंगे, अपॉन हाउ मैनी वर, यहाँ पे ये बार कितने पे था, ठीक है, 2 पे, सो 2 9, एंड नॉन बार 0, सिंपल.
सो ए बी सी माइनस 9 अपॉन 990, बट इसको और ओपन करेंगे, ठीक है, इसको हम ओपन कैसे करेंगे, सी प्लस 10b प्लस 100a माइनस a अपॉन 990, एंड इफ यू सॉल्व दिस क्या होगा, c प्लस 10b प्लस 99a अपॉन 990, दैट इज द फाइनल आंसर, दैट इज द फाइनल आंसर. अब आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, यू विल ईजिली बी एबल टू सॉल्व इट, यू विल ईजिली बी एबल टू सॉल्व इट. कोई भी तुमसे बोले 0.1 2 3 4 5 यहाँ पे बार लगा देगा, सपोज करो ये लगा दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 अपॉन एक बार है 9, जितने नॉन बार है 1 2 3 4, खत्म, 1 2 3 4, सही है, बस दैट्स इट, यू नीड टू राइट दिस, ठीक है, राइट. अगर एक और बार खिसकाता तो यहाँ 9 एक और आ जाता, एक 0 कम हो जाता, एंड 1 2 3 की जगह एक ही चले जाता, सिंपल, ठीक है. सो दैट इज द जनरल वे, दैट इज द जनरल वे टू डू अ क्वेश्चन. ओके, एक चीज और समझना, अनदर कॉन्सेप्ट इज what happens if there is a bar on the first number as well. For example, ये आ जाए 2.3 बार आ जाए, अब बताओ अब कैसे करोगे, ठीक है, ऐसा आ जाता है. तो इसकी ट्रिक क्या होती है, 2 को कभी भी याद रखिएगा, पॉइंट से पहले, पॉइंट से लेफ्ट, इफ द बार इज देयर, जस्ट राइट -2, जस्ट राइट -2 प्लस, नाउ ट्रीट दिस एज 0.3 बार. तो क्या है 0.3 बार मतलब 3 माइनस कुछ नॉन बार तो 0 कर देंगे, अपॉन एक बार 9, सो -2 प्लस 1/3, राइट, दैट्स विल बी द आंसर, ठीक है. इस तरीके से आपको ये चीज़ लिखनी है, बस याद रखिएगा. लेफ्ट वाले पे वो लगाएंगे, अगर होल नंबर टाइप का है तो वो लगाएंगे, ठीक है, राइट, पक्का पक्का. आ गया, लास्ट एक क्वेश्चन कर दो तुम्हें तो आ गया. 2.3 बार प्लस 0.5.3 बार प्लस 4.3 प्लस 1.6 बार इक्वल टू क्या होगा आंसर, आंसर बताओ. पॉज द वीडियो एंड देन सॉल्व, ठीक है, पॉज द वीडियो एंड देन सॉल्व. चलो ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं. मुझे भी नहीं पता, ऐसी रैंडम लिखा है, कुछ भी आंसर हो सकता है, ठीक है. 2 सर आपने बोला था नेगेटिव है, सो -2 प्लस इसको वैसे ही ट्रीट करेंगे 3/9, क्योंकि एक पे था बार, ठीक है, और एक 9 आ गया, फाइन, ठीक है, ओके, प्लस, ठीक है, प्लस के बाद ये आएगा 0.5, तो प्लस के बाद यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो प्लस मत लिखो, सीधा -5 इसको लिख दिया, ठीक है, -5 प्लस पॉइंट हो जाएगा 3/9 बार, ठीक है, प्लस क्यों लिखेंगे, माइनस लिखेंगे ना, -4 वाले का -4, सिंपल, क्योंकि वही लिखना है, प्लस अब क्या होगा 0.3 को तो 0.3 लिखेंगे, 0.3 इज व्हाट, 0.3 1/3, राइट, 0.3 क्या है, सिंपल, ठीक है, 3/10, राइट, तो 0.3 लिख दो. आपको इसको क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस पर कोई बार बार थोड़ी ना है, दिस इज अ नॉर्मल डेसिमल, ठीक है, प्लस अब 1 पे बार नहीं है तो 1 को वैसे ही रहने दो, प्लस 0.6 आ गया, 0.6 बार, तो 0.6 बार व्हाट विल बी 6/1 9 होगा, 9 आ जाएगा, राइट. अब इस को सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर है दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर, राइट. So I hope this video was helpful, right, and we discussed a few concepts, right, and I hope now you will be able to convert decimal into, you can say, fractions, and you would be familiar with the concept of place value and face value, ठीक है. Next question में in the next class we begin the concept of numbers, and उसमें we will be discussing about the divisibility rule. चलिए, take care, bye bye.